مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سانگلا ہل میں ڈی پی او ننکانہ کی جانب سے عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او سردار موہن کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ میرے دفتر کے دروازے عوام کے تحفظ اور انصاف کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ کھلی کچہری کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنا ہے۔ روہڑی میں ایکسائز پولیس نے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایکسائز پولیس کے مطابق نیشنل ہائی وے پر ایکسائز چیک پوسٹ کے قریب آنے جانے والی گاڑیوں کی تلاشی کے دوران آئل ٹینکر سے تلاشی لینے کے دوران 100 کلو چرس برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کو پولیس کے حوالے کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ سرگودا میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ بدترین لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری مہنگی ایل پی جی اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سرگودا میں گیس بندش اور کم پریشر نے شہریوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ خواتین کے لیے سکول ٹائم میں ناشتہ بنانا بھی امتحان بن گیا ہے۔ غریب شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس تو آتی نہیں لیکن بل ہر ماہ بڑی قیمتوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ ناشتہ اور کھانا بناتے وقت گیس بالکل نہیں آتی۔ غریب آدمی لکڑی اور ایل پی جی گیس نہیں خرید سکتا۔ حکومت سے اپیل ہے برائے مہربانی غریبوں پر رحم کرے اور گیس مہیا کی جائے۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے متبادل ایندھن کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ ایل پی جی اور لکڑیوں کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ ایل پی جی کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ تقریباً 11 کے جی کا سلنڈر جو ہے نا 2500 کا ہے۔ اس کا کم سے کم ریٹ جو ہے نا 1000-1200 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ پر کے جی جو ہے نا 100 روپے کے جی ہونا چاہیے، جبکہ یہ 220 روپے کے جی سیل ہو رہا ہے، جو عام غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ غریب آدمی ہے جو دیہڑی دار ہے، جو دیہڑی 700-800 روپیہ لیتا ہے، وہ نہیں لے سکتا، اور وہ 1 کلو بنواتا ہے 2-3 دن گزارتا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے اس سے ٹیکس کم کرے تاکہ اس کے ریٹ کم ہونے چاہیے۔ مہنگائی کے اس دور میں غریب آدمی نہ تو بازار سے کھانا خرید سکتا ہے اور نہ ایل پی جی گیس اور لکڑیاں۔ شہریوں نے سوئی گیس حکام اور وزیر اعظم پاکستان سے سرگودا میں سوئی گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بلٹن میں مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ روہڑی میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث نیو کارڈیالوجی کا نیا گراؤنڈ جوہڑ میں تبدیل ہو گیا۔ تفصیلات کے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے کھیل کود کے سرگرمیاں متاثر ہو چکی ہیں، جبکہ مقامی کھلاڑیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گندگی اور غلاظت کے باعث متعدد بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ اس سلسلے میں علاقائی مکینوں نے صوبائی وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ، پیپلز پارٹی رہنما سید کمیل حیدر شاہ، ڈپٹی کمشنر سکھر سے مطالبہ کیا ہے کہ نیو یارک کالونی کے ناز گراؤنڈ میں تاحال جمع شدہ پانی کے نکلوانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ ڈی پی او ننکانہ صاحب سردار موہن خان کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایس ایچ او تھانہ صدر شاہکوٹ مظہر حسین کی سربراہی میں اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی، جنہوں نے جبران عرف جبرو مسیح اور ساتھی ملزم بسم اللہ احسن طارق کو جدید ٹیکنالوجی اور دن رات کی محنت کے بعد پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا۔ دوران تفتیش ملزموں نے 11 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ڈکیت گینگ کا سرگنا جبران عرف جبرو مسیح ڈکیتی کے 7 مقدمات میں اشتہاری تھا۔ ملزمان سے مختلف وارداتوں میں چھینی ہوئی لاکھوں روپے کی نقدی، 3 عدد موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ مرغی کے گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ گوجرا میں مرغی کا گوشت 550 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ پنجاب اور وفاقی حکومت نے 8 ماہ میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے عام آدمی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو چکا ہے اور اب متوسط طبقے کا بھی جینا محال ہو چکا۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلائلر مرغی کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ یوٹیلٹی اسٹور انتظامیہ نے نوٹس لے لیا۔ کوٹ عبد المالک کے سرکاری یوٹیلٹی اسٹور پر آٹا، گھی اور چینی کو 25 دن کے بعد بحال تو کر دیا گیا، لیکن حکومت نے نیا سسٹم متعارف کروا دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مقصود بخاری۔ جی مقصود، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट अब्दुल मालिक सरकारी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। अगर इस सरकारी यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यहाँ पर हमारी माएँ बहनें ख़वातीन जो हैं, बुज़ुर्ग लोग जो हैं, वो इस वक्त आटा लेने के लिए और घी लेने के लिए जो सरकारी रेट पर दस्तयाब है वो ख़रीदने के लिए यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह 8 बजे के ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं, इनको आटा और घी क्यों नहीं दिया जा रहा। जी मेरे साथ मेरी बहन मौजूद है, मैं इनसे बात करेंगे क्या हुआ, अब क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम आ जाते हैं सुबह 9 बजे स्टोर खुल जाता है, तो ये हमें कहते हैं कि मैसेज करें, मैसेज का जवाब नहीं आता। सारा दिन हो के 2 दिन बाद जब मैसेज आता तब आटा ख़त्म हो जाता है, और जब घर जाते हैं उसी दिन आते जवाब नहीं आया तो कहते हैं अभी दुकानों पे आटा दे देते हैं। 25 उस दिन पेटियाँ घी की उतरी, हमने मांगा भी हमें घी दे, नहीं ख़त्म हो गया, गायब हो गया। 2 घंटे में ये गायब कर देते और बदतमीज़ी भी करते हैं। हाँ, मुझे उस दिन आदमी ने कहा कि आप जाएं अपने घर, भाई अपने घर जाके बैठें, बदतमीज़ी करती है, आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। एक दफ़ा आटा आता है और वो ये हमें नहीं देते, हमारी आंखों के सामने। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी, हमारी जो ख़वातीन माएँ बहनें हैं वो किस तरह लाइनों में लगी हुई हैं, उनको किस तरह जलील किया जा रहा है। और भी जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बुज़ुर्ग शहरी जो हैं वो मौजूद हैं। अब इनसे भी बात करेंगे कि क्यों आपको जलील किया जा रहा है। अभी जो स्टोर के अंदर, स्टोर के ऊपर आटा भी मौजूद है, घी भी मौजूद है, आपको अब जलील क्यों किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं कल से इधर के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मैसेज भी किए हैं, 10 कार्ड के मैसेज किए हैं, एक का भी अभी तक जवाब नहीं आया। ये ख़वातीन भी परेशान हैं, बुज़ुर्ग भी परेशान हैं, लेकिन इसका हल कोई नहीं निकल रहा। पहले अच्छा सिस्टम था, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी दें और आपको आटा और दालें जो भी मुयस्सर मिल जाता है, लेकिन अब वो कोर्ट का चक्कर निकाल दिया है। कोर्ट आएगा तो आपको चीज़ मिलेगी, वरना आप परेशान होते रहे। ये कल से परेशान आज बिल्कुल, अभी जो नया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया, शनाख्ती कार्ड की कापी दी गई, उसके बाद वो मैसेज आएगा तो आटा मिलेगा। बुजुर्ग शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे, इनका क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, इत्थे आवाम बहुत जलील हो रही है यूटिलिटी स्टोरों पे। किसी का मैसेज आ जाता है, किसी का 5-5 दिन आते ही नहीं है। कई लोग बेचारे बैलेंस ही ख़त्म किए बैठे हैं इसके बारे में, मैसेज कर करके उन्होंने अपने बैलेंस ख़त्म कर लिए, लेकिन उनके वापसी मैसेज नहीं आया। तो किसी का आता है, 100 में से एक का आता है, बाकी 99 का नहीं आता। तो वो गरीब आवाम कहाँ जाए, ये इंतज़ार करती रहे, 10-10 दिन इंतज़ार करे, 2 दिन इंतज़ार करे, 4 दिन आटे की अभी ज़रूरत हो ना मिले तो बच्चे किधर जाएंगे कल लोगों के। ये देखो बाहर कितना हजूम है औरतों का, मर्दों का, ये बेचारे खजल खुआर हो रहे हैं ये हुकूमत। और मैंने 65 साल की ज़िंदगी में ये पहली मरतबा हिसाब देखा है जो अभी हो रहा है हमारे मुल्क में। ये पहली मरतबा मैं हिसाब देख रहा हूँ 65 साल की ज़िंदगी में, पहले नहीं हमने देखा ऐसा। ये क्या सिस्टम है, क्या हुकूमत कर रही है हमारी। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। जो गरीब आवाम जो है इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के अंदर आई हुई है और हुकूमत वफाक से और अपने वज़ीर आज़म से खफा दिखाई दे रही है। और इनका मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जिस तरह गरीब आवाम के साथ आपने वादा किया था, जब आपने हल्फ उठाया था तो कहा था कि गरीब आवाम को आटा मिलेगा, घी मिलेगा, सरकारी रेटों पर चीनी मिलेगी। लेकिन आज यही आवाम जो है वो गरीब आवाम जिसने आपको वोट देकर वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन अफसोस कि आज वही आवाम वोट देकर आवाम जो है वो लाइनों में लगी हुई है और ज़लील ख्वार हो रही है। इसी आवाम का मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, खुदा के लिए इस गरीब आवाम पर तरस खाएँ और गरीब आवाम को जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं और वादों का वफा किया जाए, ताकि गरीब आवाम जो है वो इस वक्त अपने घर के अंदर अपने बच्चों का पेट पाल सके और गरीब आदमी को आटा मुहैया किया जाए, ताकि जो गरीब लोग जो हैं वो इस तरह इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि ज़िला खुशाब में सरसों की फसल अपने उरूज पर है। हर तरफ पीले फूलों की बहार नजर आ रही है। सरसों की फसल इस वक्त तैयार हो चुकी है। इस हवाले से मज़ीद देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह जिला खुशाब के इलाका थल के मुख्तलिफ मवादियात में भी सरसों की फसल अपने अरूज पर है। हर तरफ पीले नरम नाजुक फूलों की बहार नजर आ रही है। सरसों की फसल सब्ज और पीले रंगों में मलबूस दिलकश होने के साथ साथ किसानों के लिए रोजगार का बेहतरीन जरिया भी है। वसीओ अरीज इलाका थल में सरसों की फसल तैयार होने के आखिरी मराहल में है। हद निगाह सरसब्ज पत्तों और पीले रंग के फूलों ने जमीन पर चादर ओढ़ ली है। किसानों के मुताबिक सरसों इंतहाई कम खर्च और कम वक्त में तैयार होने वाली फसल है, जो काश्तकारों के लिए किसी बोनस से कम नहीं। थल में बगैर खाद और बगैर स्प्रे तैयार किया
जाने वाला सरसों अपनी मिसाल आप है। सरसों की फसल के बेशुमार फायदे हैं। साग हो या कैनोला ऑयल घी हो, सरसों हेयर ऑयल अपना सानी नहीं रखते। मजीद बरा सरसों की फसल काश्तकारों के लिए जबरदस्त मुनाफा बख्श भी है। इस फसल पर बेहतरीन तवज्जो देकर मुल्क की सतह पर कैनोला के जरिए अरबों रुपए ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के 4 साला दौर में रुकन कौमी असम्बली रियाज फतेहाना के नवाही गांव में कोई भी तरक्याती मंसूबा शुरू ना हो सका। रियाज फतेहाना का कहना है कि अपने 4 साला दौर में पीटीआई हुकूमत में तरक्याती कामों के लिए फंड्स का उजरा नहीं किया। अहले इलाका के कई बार कहने के बावजूद ताहाल एक भी मंसूबा पर अमल शुरू नहीं हो सका। ज़िला हाफिजाबाद में चौधरी मेहदी हसन भट्टी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एमएनए शौकत अली भट्टी, एमपीए चौधरी सिकंदर नवाज भट्टी ने शिरकत की। शौकत अली भट्टी का कहना था कि इमरान खान ने 45 अरब रुपए का पैकेज हाफिजाबाद को दिया, जिसमें से 20 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च हो चुके हैं। चौधरी सिकंदर नवाज भट्टी ने कहा कि हम 24 घंटे हाफिजाबाद की आवाम के लिए हाजिर हैं। हाफिजाबाद की आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का फैसला किया। थाना सिटी करोड़ पक्का पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लोधरा में मुलजिम तनवीर ने राइफल की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके राइफल बरामद कर ली गई है। डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम का कहना है कि असलहा की नुमाइश पर सख्त पाबंदी है, खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। ओकाड़ा में कौमी शाहराह पर ट्रेलर, बस और ट्रक में तसादुम हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 हुकाम फौरी मौका पर पहुंच गए और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों की लाशें भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जलालपुर पीरवाला में थाना सिटी पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 2 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद कर ली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 मंशियात फरोशों को भी गिरफ्तार किया गया। SHO थाना सिटी जलालपुर काशिफ शहजाद ने टीम के हमरा अलीपुर सादात रोड और उमरपुर रोड से मंशियात फरोश आबिद हुसैन से 1 किलो 120 ग्राम जबकि मोहम्मद आश को 1 किलो 260 ग्राम चर्स बरामद करके इन्हें गिरफ्तार किया, जबकि मुलजिमों के अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। CPO मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ की हिदायत पर पुलिस थाना मुमताज़ाबाद ने कार्रवाई की। पुलिस थाना मुमताज़ाबाद ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों में से रमज़ान नदीम उर्फ लंबा, एजाज ताहिर और वसीम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों के कब्जा से 330 लीटर से ज़्यादा शराब बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुमताज़ाबाद में मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। पीर महल के नवाई गांव चक नंबर 337 में महकमा माल ने कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर इरफान मार्टन ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर चौधरी अरशद बदर के हुक्म पर कब्जा माफिया के खिलाफ आए रोज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कब्जा माफिया किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। इन्होंने कहा कि आज की इस कार्रवाई में 60 लाख मालियत का 4 किनाल सरकारी कब्जा वागजार कराया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि अगर ये लोग दोबारा कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सरगोदा पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 करोड़ 64 लाख का माल मसरूका मालिकान के हवाले कर दिया। हुकाम की जानिब से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस एहलकारों को नकद इनाम दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह में पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं। करोड़ों मालियत की गाड़ियाँ, 96 मोटरसाइकिल, 3 रिक्शा, 37 जानवर और मुतअद्दिद दीगर अशिया मुलजिमों से बरामद हुई। 591 मुकदमात में 31 कलाशनकोव, 68 राइफलें, 113 बंदूकें, 432 पिस्टल भी मुलजिमान से बरामद किए गए। मुलजिमों से 16 किलो हेरोइन, 72 किलो चर्स, 16 किलो अफ्यून और शराब भी बरामद की गई। DPO तारिक अजीज ने माल असल माल खान के हवाले कर दिया। लकी मरबत के इलाके मस्जिद खेर में नामालूम अफराद पुलिस एहलकार के घर पर दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने पुलिस एहलकार नवाब खान के घर से दस्ती बम पर हमला किया और फायरिंग भी की। वाक़या में इमारत को नुकसान पहुंचा जबकि किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। वाक़या के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लाहौर के इलाका मराका में LWMC अमले की बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत पूरा इलाका गंदगी से पाक हो गया।
تفصیلات کے مطابق یونین کونسل 260 میں LWMC کی ٹیم نے گزشتہ ماہ سے مسلسل کام کیا اور پورا علاقہ بھاری مشینری اور صفائی ورکرز کی مدد سے صاف کیا گیا۔ اس موقع پر عوام کا کہنا تھا کہ اتنے سالوں میں پہلی بار اس طرح صفائی ہوتی دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہاں پر کچرے کے ڈھیر ہوا کرتے تھے۔ یہ رانا جاوید عمر صاحب کی کاوشیں ہیں جن کی وجہ سے ٹیم متحرک ہے اور ذمہ داری سے اپنا کام پورا کر رہی ہے۔ پسرور میں ڈمپر نے موٹر سائیکل کو کچل ڈالا، حادثے میں 15 سالہ لڑکا زندگی کی بازی ہار گیا۔ افسوسناک واقعہ کنگرا روڈ پر پیش آیا جہاں تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری۔ حادثے میں ایاز نامی لڑکا جاں بحق ہوا۔ واقعے کے بعد اہل خانہ نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین نے ڈمپر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز، کیونکہ وائس نیوز ہے پاکستان کی آواز۔